Hello student, welcome to my YouTube channel and digital platform. Very welcome to all students. And previous classes we discuss about the Olympic some basic history, and with also discuss about the ancient Olympic. In ancient Olympic start from in a 776 BC, and in ancient Olympic start from the Greece. That is we can say that Greece is the origin of the Olympic. And here Olympia is name of mountain and Olympus name of a place where Olympic is conducted in ancient time. And here we have discussed about some rules and regulations, and opening and closing ceremony. In opening and closing ceremony, what is the sequence of different sports in opening ceremony and closing ceremony, and with rules and participation rules. And there is only Greece participation in an ancient Olympic. Only women not allow in a female participation. Only male participation. Only male participate in Olympic from the Greece. Only Greece country peoples participate in Olympic from different states, where one condition is women not participates. Third, their 1 month training before the start of Olympic, and 10-month training in their opening state. There is some rules and regulations. And now opening ceremony start from pig kill. In Olympic in ancient time, Olympic is the honor of god of sky. If we can see that god Zeus god, and here the god of Zeus in front of statue of Zeus, in honor of Zeus. Zeus is called god of sky. And next, opening ceremony start by the kill of pig from the honor of Zeus. Then take an oath, and after the taking of the oath, number of participants accumulated in a particular places, where all the participants introduce oneself, and then after the introduction of all the participations with our different states represents in front of the statue of Zeus, then start the religious games. Total ancient Olympic conducted in 4 days only 4 days. So we are first day conducted in a religious functions perform. Then second day conduct first march past and introduction, or after that introduction chariot race, horse race and pentathlon held in a second day. And in a third day morning, ritual sacrifices of animals was performed. Then after that, completing of races, wrestlings and boxing were held in the third day. Wrestling and boxing compete in the third day on races. And the fourth day, only athletic event, wrestling and boxing competitions in a fourth day. And in a fifth day only conducted in a recreation program in a fifth day. That is the only in ancient Olympic conducted only in a total fifth day. What first day only religious festival, at last day only recreation festival, and middle 3 day conducted a sports event, different sports events. Which games? Chariot race, horse race, pentathlon, and I already told you races, wrestling and boxing, these competitions. How many competitions? Boxing 1, wrestling 2, and races 3, and athletic event 4, and chariot race and horse race 5 and 6 and 7. Only 7 events conducted in Asian Games and also ancient Olympic. Now also we have discussed about the which events introduced in different in ancient time, also different years.
डिफरेंट 776 बीसी में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट डिफरेंट टाइम में भी अलग अलग गेम्स इंट्रोड्यूस हुए। जैसे 724 बीसी में 724 बीसी में कौन सा हुआ था? 400 यार्ड वॉकिंग। आई ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस। एंड देन 3 माइल रेस हुआ था 720 बीसी में। देन पेंटाथलॉन हुआ था 708 बीसी में, इंट्रोड्यूस हुए थे। एंड देन बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस हुआ था 788 बीसी में। एंड हॉर्स राइडिंग, हॉर्स रेस इंट्रोड्यूस हुआ था 748 बीसी में। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो बीसी में है, जो पहले ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे सपोज 776 बीसी है, तो ये पहले का टाइम है, इसके बाद का टाइम आएगा 724 बीसी। ये इसमें समय उल्टा चलता है, क्योंकि हम बीसी की बात कर रहे हैं। तो 776 बीसी क्या हो जाएगा? एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी वाली बात। उससे फिर आगे का टाइम क्या हो जाएगा? 724 बीसी। ये उल्टा चलता है। इसके बाद का समय है ये, तो ये उल्टा चलता है। कम नंबर समय पास में आता जाता है और ज्यादा नंबर समय पीछे जाता है। तो ऐसे ये बीसी में उल्टा चलता है। तो ये एशियन टाइम में हमने डिसाइड किया। फिर हम मॉडर्न ओलंपिक के बारे में देखा था हमने कि मॉडर्न ओलंपिक किसने रिकॉग्नाइज करवाया था? पियर बेरोन डी कॉबेर्टिन, जो फ्रांस के थे, उन्होंने ओलंपिक लाया। फर्स्ट ओलंपिक 1896 में ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें ओनली 9 कंट्री पार्टिसिपेट की थी। देन ओलंपिक मोटो किसने दिया था? डिडियन ने दिया था। कब दिया था? 1895 में। देन ओलंपिक फ्लैग कब आया था? 1913 में। बस ऑफिशियली कब आया था? 1914 में इनॉग्रेट हुआ था, बट ऑफिशियली कब आया था? 1920 में। पियर डी कॉबेर्टिन ने इसे बनाया था। और इसमें 5 रिंग्स थे जो सारे कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे। देन हम ओलंपिक फ्लैग की बात की थी, ओलंपिक फ्लेम की बात की थी, सॉरी, ओलंपिक फ्लेम या ओलंपिक वी कैन से दैट ओलंपिक टॉर्च। ओलंपिक टॉर्च किसका सिंबल है? नॉलेज एंड लाइफ हैप्पीनेस का। ये यहाँ से जलती है, ग्रीस से जलती है, और देन कहाँ तक चलती है? ये अपने होस्ट कंट्री तक जलाकर ले जाते हैं। तो ये ऐसे ओलंपिक टॉर्च ओलंपिक फ्लेम की काम करती है। फ्लेम अपना जो ओलंपिक टॉर्च ओलंपिक फ्लेम है, इसका ये कॉन्सेप्ट है। देन फर्स्ट जो ओलंपिक, मैंने एक और चीज बताई थी, फर्स्ट जो ओलंपिक टॉर्च यूज हुई थी वो बर्लिन ओलंपिक में हुई थी। बर्लिन ओलंपिक 1936 बीसी में, 1936 ईयर में, 1936 सेशन में, जहां पर उस टाइम पर हिटलर का राज था जर्मनी में। तो बर्लिन का है जर्मनी में। 1936 का जो ओलंपिक हुआ था वो बर्लिन जर्मनी में हुआ था। तो फर्स्ट टाइम हिटलर के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया कि जो टॉर्च है वो ग्रीस से जला कर लाई जाएगी, जहां होस्ट कंट्री है वहां तक। तो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1936 जर्मनी ओलंपिक में। नाउ प्रोसीड टू अवर टुडे लेक्चर ऑन ओलंपिक अवार्ड। मॉडर्न ओलंपिक में चल रहे थे, तो मॉडर्न ओलंपिक में ओलंपिक अवार्ड्स की बात करते हैं हम। ओलंपिक In previous classes we already told you कि Olympic awards in ancient times only olive oil मुखौटा या olive oil ताज पहनाते थे उनको उस टाइम पर। बट नाउ डेज ओलंपिक अवार्ड में क्या कौन कौन से इंट्रोड्यूस हो गए हमारे? गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ओलंपिक अवार्ड में क्या हो गए? गोल्ड, सिल्वर एंड विथ प्लस क्या मिलता है? सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट किसको मिलता है? ऑल पार्टिसिपेंट्स को मिलता है। सर्टिफिकेट फॉर ऑल पार्टिसिपेंट। ऑल पार्टिसिपेंट्स, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज एंड सर्टिफिकेट्स फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। ये आपका ओलंपिक अवार्ड था। एंड नेक्स्ट 5 पोजीशन होल्डर्स के लिए अवार्ड विद सर्टिफिकेट ओनली। जो 3rd पोजीशन तक आते हैं, फर्स्ट को मिलता है गोल्ड, सेकंड को मिलता है सिल्वर एंड थर्ड को मिलता है ब्रॉन्ज। और बाकी अपकमिंग अप टू 5, अपकमिंग नेक्स्ट 5 को क्या मिलता है? नेक्स्ट 5 जो पोजीशन पे आते हैं, नेक्स्ट 5 जो पोजीशन पे आते हैं, सपोज करो फर्स्ट को ये मिल गया, सेकंड को ये मिल गया, थर्ड को ये मिल गया, 4th 5th 6th 7th 8th पोजीशन पे जितने भी लोग आएंगे उन्हें क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ओनली।
ओनली सर्टिफिकेट, सो नॉट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ओनली। किसको मिलेगा? सर्टिफिकेट ओनली जो नेक्स्ट 5 पार्टिसिपेशन रहेंगे उनको, नेक्स्ट 5 पार्टिसिपेंट्स, नेक्स्ट 5 पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको एक और बताता हूँ, ओलंपिक अवार्ड सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मॉडर्न ओलंपिक, तो उस टाइम पर सबसे पहले ओनली टू मेडल्स गिवन, ओनली सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। बट 1900 में बाद में गोल्ड मेडल को इंट्रोड्यूस किया है। तो फर्स्ट टाइम जो गोल्ड मेडल दिया गया था उसमें प्योर गोल्ड था, प्योर गोल्ड। फिर आप बाद में फिर इनको मर्ज कर दिया गया, इसमें 2 से 3% गोल्ड रहता है, बाकी सिल्वर रहता है। तो ऐसे इसमें 2-3 मेटल रहते हैं, इसमें भी 2-3 मेटल रहते हैं। ये प्योर मेटल्स के नहीं होते, बट जो फर्स्ट टाइम जो गोल्ड दिया गया था वो प्योर मेटल का था, प्योर गोल्ड का था। सो ये कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हो अवार्ड्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड टू ओलंपिक ओथ। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड टू ओलंपिक ओथ। या वी कैन सी दैट ओलंपिक शपथ। ओलंपिक ओथ क्यों ली जाती है? क्योंकि ये एक मेमोराइज और एक रिमेम्बर किया जाता है प्लेयर्स और ऑफिसर्स को, ताकि जो इवेंट आएगा, जो हम कंपटीशन खेलेंगे, उसमें हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें और हम कोई भी इलीगल या कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे लोगों का सम्मानित तो नहीं हो और हमारे किसी भी रूल्स को, रेगुलेशन को तोड़ना, जो इलीगल एक्टिविटी हो, जो ओलंपिक और उसके प्रति सम्मानित ना हो। इस पर्पज से हम इस ओथ को लेते हैं। तो ड्यूरिंग द ओपनिंग फर्स्ट जो ओथ ली जाती है एंशिएंट टाइम को ओलंपिक में भी ली जाती थी और हमारे मॉडर्न ओलंपिक में भी उस चीज को फॉलो किया गया है। देन फर्स्ट में जो फर्स्ट ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें सभी असेंबल होते हैं स्पोर्ट स्टेडियम में और अपनी अपनी कंट्री के साथ, जो होस्ट कंट्री है उसके साथ फॉरवर्ड में होल्डिंग में फ्लैग लाते हैं। फ्लैग लाकर मार्च पास्ट करते हैं। मार्च पास्ट करके जो फ्लैग बियर रहता है वो नेशनल को टेक अवे देयर पोजीशन, फ्लैग बियर की जो नेशन है फ्लैग बियरर्स की, वो पोजीशन लेता है। फिर इसके बाद सभी अपने हैंड को बिहाफ ऑफ ऑल एथलीट हु रेज राइट हैंड रेज करते हैं और रिपीट करते हैं उस ओथ को। तो मैं आपको उस ओथ को रिपीट करके बताऊं क्या क्या ओथ लेते हैं वो इंग्लिश में। वी स्वेयर दैट वी विल टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम इन ए लॉयल कंपटीशन, respecting the regulation which govern them and desirous of participation in them, in the true spirit of sportsmanship for honor of our country and for glory of sports। ये एक ओथ थी जो ओलंपिक में ली जाती है। तो मैंने आपको प्रोनाउंस करके बताया उस ओथ को कैसे करते हैं। ये एक ओथ थी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। वी श्योर दैट we will take part in Olympic Games in loyal competition and respecting the regulation which govern them and desirous of participation in them in the true spirit of the sportsmanship for honor of our country and for the glory of sports। ये ओथ ड्यूरिंग द ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में ली जाती है। ये हमारी ओथ थी और ओथ का जो भी है फ्लैग बियरर आता है, जहां पर इंट्रोडक्शन होता है, सभी आते हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे अभी इन टोक्यो ओलंपिक में मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम आई थी, दोनों फ्लैग बियरर थी और वहां की टीम उनके पीछे थी। और मैंने पहले बताया तो ओपनिंग सेरेमनी जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आता है ग्रीस, क्योंकि सबसे जो पहले ओलंपिक स्टार्ट हुआ था वो ग्रीस से हुआ था। तो ग्रीस, फिर अल्फाबेट वाइज बाकी टीम, फिर एट लास्ट होस्ट टीम आती है। तो ये ओपनिंग सेरेमनी का सीक्वेंस रहता है। सभी असेंबल होते हैं वहां पर, अपना राइट हैंड रेज कर रिपीट द ओथ। आफ्टर द, जब वहां का प्रेसिडेंट जो है इंडियन ओलंपिक कमेटी का, वो ओथ को प्रोनाउंस करता है। देन सभी बाद में प्रोनाउंस करते हैं सारे प्लेयर्स। ये हमारी ओथ थी ओलंपिक की। नाउ नेक्स्ट we will talk about rules for competition and opening ceremony and closing ceremony. Now we will discuss about rule for competitors. Competitors के लिए क्या रूल्स रहते हैं ओलंपिक में? So here discuss all the male and female can participate in Olympic. All the males
plus females can participate in Olympic game. एंड ओलंपिक गेम्स में जो एलाइट एथलीट रहते हैं या जो प्रोफेशनल एथलीट रहते हैं उन्हीं को सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए दिया जाता है। अब ये एलाइट एथलीट रहते हैं और जो रहते हैं ये किसके भेजते हैं, ये भेजते हैं अपनी अपनी कंट्री की जो नेशनल ओलंपिक कमेटी होती है उसके थ्रू रिकॉग्नाइज करके इन्हें भेजा जाता है पार्टिसिपेशन को। सपोज दैट इंडिया की जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका नाम क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसे हम बोलते हैं IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जितने भी प्लेयर हैं ये हर एक देश की एक अलग नेशनल ओलंपिक कमेटी है। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी होगी, बांग्लादेश में बांग्लादेश ओलंपिक कमेटी होगी, सभी देश की ओलंपिक कमेटीज रहती हैं। हमारी यहाँ पर कौन सी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन जिसे हम बोलते हैं IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स जाते हैं ओलंपिक में वो उनकी लिस्ट और उन्हें जो रिकॉग्नाइज करता है वो कौन करता है, हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ही रिकॉग्नाइज करती है। देन फिर वो प्लेयर्स, एलाइट प्लेयर्स जो भी हैं वो अपने वहां पर ओलंपिक में परफॉर्म करते हैं। तो कोई भी स्पोर्ट पर्सन विदाउट रिकमेंडेशन या विदाउट अप्रूवल ऑफ अपनी नेशनल ओलंपिक कमेटी के थ्रू पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ओलंपिक में। विदाउट पार्टिसिपेशन ओलंपिक में विदाउट अप्रूवल के पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सो देयर नेशनल ओलंपिक कमिटी इज मैंडेटरी फॉर ऑल द पार्टिसिपेशन नेसेसरी। नाउ वी विल प्रोसीडिंग टू आवर opening and closing ceremony process in modern Olympic. What is the process in opening and closing ceremony? So first we will discuss opening ceremony. Opening ceremony. ओपनिंग सेरेमनी में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्च और फ्लैग। सबसे पहले तो क्या होता है, बिफोर दिस प्रोसेस ऑल द स्पोर्ट पर्संस टेक पार्ट इन मार्च पास्ट एंड टेक ओथ। सबसे पहले कोई भी प्लेयर जाता है, सबसे पहले फर्स्ट डे क्या होता है, वो मार्च पास्ट करते हैं क्या, मार्च पास्ट करके देन टेक ओथ। फर्स्ट डे मार्च पास्ट देन टेक ओथ के बाद इसके बाद उनका प्रोसीजर रहता है लेटर ऑन रिक्रिएशनल गेम ऑर्गेनाइज। फिर क्या होता है, रिक्रिएशन गेम, और उसके बाद रिक्रिएशन गेम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। रिक्रिएशनल एंड कल्चरल गेम्स, रिक्रिएशन एंड कल्चरल गेम्स परफॉर्म बाय होस्टिंग कंट्री। देन इसके बाद रिक्रिएशन गेम के बाद जो भी कल्चरल प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद फिर क्या किया था, ओलंपिक फ्लैग को होस्ट किया था। फिर क्या किया था, होस्टिंग ऑफ ओलंपिक फ्लैग, होस्टिंग ऑफ ओलंपिक फ्लैग, और देन उस फ्लेम को जलाया जाता है, आफ्टर दैट
कोई भी वहां का प्रेसिडेंट या आपका प्राइम मिनिस्टर होता है वो देन फ्लैम के बाद जो आपका ओलंपिक प्रेसिडेंट या पीएम जो भी हेड ऑफ उस होस्टिंग कंट्रीज का रहता है वो वहां के उसको ओलंपिक को ओपन करने की घोषणा करता है। सपोज करो इंडिया में प्लेयर होता है, कोई इंडिया में कुछ होता है तो वहां का हमारे नरेंद्र मोदी जी अपनी डिक्लेयर करेंगे ओपनिंग सेरेमनी को। अब जो फ्लैम है, फ्लैम कहां से ली जाती है? फ्लैम ली जाती है ग्रीस से। वो किसके थ्रू जलाई जाती है? वो ओलंपिक विलेज में सन रेसेस जो होती है, सूरज की किरणें होती हैं, उनसे जलाई जाती है। और कहां तक लाई जाती है? होस्ट कंट्री तक लाई जाती है। ये सीक्वेंस चलता है, मार्च पास होती है, होस्ट होता है, फिर रिक्रिएशन एक्टिविटीज होती हैं, देन इसके बाद ओलंपिक फ्लैग को होस्ट किया जाता है। आफ्टर दैट फ्लैम को जलाई जाती है, आफ्टर दैट फ्लैम को जलाई जाती है, फ्लैम आफ्टर दैट फ्लैम को या टॉर्च को जलाई जाती है वहां पर ओलंपिक विलेज में, होस्टिंग कंट्री में। होस्टिंग कंट्री में वहां जहां से ग्रीस से लेकर जो होस्टिंग कंट्री है वहां पर उस फ्लेम को जलाई जाती है। इसके बाद जो आपको वहां का मेयर या वहां का जो हेड रहता है उस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का, प्रेसिडेंट या पीएम, वो इस गेम्स को ओपन या बिगिन से वो उस गेम्स को स्टार्ट कराने की घोषणा करता है। ये आपका ओपनिंग सेरेमनी में होता है सारा कुछ। इसके बाद टॉर्च जल गई। अब इसके बाद आफ्टर दैट ऑल द डिवाइड 16 डे का पूरा ओलंपिक होता है। तो फर्स्ट डे ये पूरे प्रोग्राम होता है। इसके बाद सेकंड डे से उनके डिफरेंट डिफरेंट मैचेस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे या वेन्यू पर उन्हें स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे 16 डे पूरा ओलंपिक चलता है। बट जो 16th डे है, फर्स्ट डे ये प्रोग्राम होता है ओपनिंग सेरेमनी में, 16th डे क्लोजिंग सेरेमनी होती है। तो 16 डे में क्या होता है? क्लोजिंग से नाउ 16th डे क्लोजिंग सेरेमनी, नाउ क्लोजिंग In a closing ceremony, sports person from all country assemble in stadium for closing ceremony. सारे assemble होते हैं। First assemble हुए all participants assemble, all participants assemble. Then the mayor of the city, a president, managing committee escort the president of Indian Olympic Committee. इंडियन ओलंपिक कमेटी को जो प्रेसिडेंट है, आईओसी के प्रेसिडेंट को जो वहां का पीएम, होस्टिंग कंट्री का पीएम जो होता है या कोई भी हेड रहता है या जो भी मेयर है वहां का, उस सिटी का या वी कैन से उस कंट्री का जो भी प्रेसिडेंट या मेयर है, वो आईओसी के प्रेसिडेंट को एस्कॉर्ट करके ले जाएगा कहाँ? स्टेडियम में। देन आईओसी का जो प्रेसिडेंट है, यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता था? वहां का प्रेसिडेंट या वहां का प्राइम मिनिस्टर घोषणा करता था। बट इन क्लोजिंग सेरेमनी में सिर्फ आईओसी का जो प्रेसिडेंट है वो ही क्लोजिंग सेरेमनी की घोषणा करता है। क्लोज बाय आईओसी चीफ, डिक्लेयर। कौन डिक्लेयर करता है आईओसी को उसको क्लोज करने का? वो डिक्लेयर करता है आईओसी का प्रेसिडेंट, उस ओलंपिक को क्लोज करने की घोषणा करता है लास्ट डे। फिर इसके बाद ओलंपिक फ्लैग को नीचे किया जाता है। 16 ही दिन ओलंपिक फ्लैग को फहराया जाता है, होस्टिंग किया जाता है फर्स्ट डे ओपनिंग सेरेमनी में। इसके बाद 16 दिन ओलंपिक फ्लैग होस्ट होता रहेगा और आपकी जो मसाज जो टॉर्च है वो भी जलती रहेगी। बट लास्ट क्लोजिंग सेरेमनी में क्या होता है? उस फ्लैग को नीचे किया जाता है और उस फ्लैग को किसको रिस्पॉन्सिबल किया जाता है? उस सिटी की जो होस्ट सिटी है उसके मेयर को रिस्पॉन्सिबल दिया जाता है, इस मेयर को गिव अप किया जाता है। देन इसके बाद जो लास्ट में फिर उसके बाद मसाल जो है एट लास्ट उसको बुझा दिया जाता है। और सबसे एट लास्ट क्लोजिंग सेरेमनी सिंग ए ओलंपिक सॉन्ग। एट लास्ट क्लोजिंग डिक्लेयर के बाद सिंग ए ओलंपिक
सिंगिंग ए ओलंपिक सॉन्ग, ओलंपिक सॉन्ग को सुनाया जाता है, ओलंपिक सॉन्ग को गाया जाता है। क्यों? किसके द्वारा? सभी पार्टिसिपेंट्स और सभी ऑफिसर्स के द्वारा। तो ये हमारी क्लोजिंग सेरेमनी यहाँ पर होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी इज कंप्लीटेड। Now we will talk about different Olympic and different sun in modern Olympic. फर्स्ट मैं आपको सिर्फ मेन ओलंपिक बताऊंगा जो आपको कॉपी में नोट डाउन करो, जो आपको जानने के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट जो ओलंपिक हुआ था 1896 में वो कहाँ हुआ था? एथेंस। एथेंस में। ये एथेंस कहाँ है? ग्रीस में। फर्स्ट जो हुआ था। देन इसके बाद जो सेकंड हुआ था वो हुआ था कहाँ? वो हुआ था 1900 में। कहाँ हुआ था? पेरिस या फ्रांस। पेरिस में। कहा? फ्रांस में। देन इसके बाद मैं आपको बता दूं, अब मैं बताता हूं मेन कौन कौन से होस्ट नहीं हुए, कौन कौन से होस्ट ओलंपिक नहीं हुए। कब नहीं हुआ? तीन बार नहीं हुआ था। कब? नॉट हेल्ड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। कब नहीं हुआ था? ये नहीं हुआ था। कब नहीं हुआ था? वर्ल्ड वॉर के दौरान, वर्ल्ड वॉर के कारण कब नहीं हुआ था? एक नहीं हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1916, एंड इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो नहीं हुए थे वो कब नहीं हुए थे? 1940 और 1944। 1916 में ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1940 एंड 1944 में ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये हेल्ड नहीं हुए थे, ये कंडक्ट नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नाउ इन 2016, अब हम मेन ओलंपिक की बात कर रहे हैं। अब 2016 में कहा हुआ था? टोक्यो, रियो डी जेनेरियो। में कहा हुआ था? रियो डी जेनेरियो। ये कहां है? यूएसए। एंड 2020 ये कहां होना था? टोक्यो ओलंपिक में शेड्यूल हुआ था, बट इसको नाम दिया टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो 2020। बट ये हेल्ड कब हुआ है? टोक्यो में हुआ था। ये टोक्यो में हुआ, अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है। टोक्यो कहाँ है? जापान। टोक्यो कहाँ है? टोक्यो कहाँ है? जापान। रिसेंटली हेल्ड हुआ है, जिसे नाम दिया 2020 ओलंपिक। और हेल्ड कब हुआ? ये एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन। पर हेल्ड कब हुआ? हेल्ड इन 2021 में इसे कंडक्ट कराया गया। कंडक्ट कब हुआ था? ये 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक वो कब कंडक्ट हुआ? 2021 में कंडक्ट हुआ, क्योंकि 2020 में ड्यू टू कोविड के कारण कंडक्ट नहीं हो पाया, इसलिए ये कब कंडक्ट हुआ? 2021 में कंडक्ट हुआ है। ये एक एक्सेप्शन होता है। फिर इसके बाद अब अपकमिंग ओलंपिक्स की बात करता हूं मैं। अपकमिंग ओलंपिक्स 2024 का पेरिस, 2028 का लॉस एंजलिस यूएसए, एंड 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ये मेन ओलंपिक्स हैं जो हमें याद रखना है। 1896 में एथेंस में, 19 में पेरिस में, नॉट हेल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1916, 14, 44 में, एंड 2016 में रियो डी जेनेरियो में, 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, बट ड्यू टू कोरोना से नहीं हो पाया, तो उसे कब कंडक्ट कराया गया है? 2021। बट नाम क्या था उसका? टोक्यो 2020 ही था। अब 2024 में कहाँ होगा? पेरिस में। 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में। 2032 में कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में।
ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट ओलंपिक